Well, hello everyone. My name is Arima Chaturvedi, and as you know me by now, I've already discussed it. I've already told you like a billion or a zillion times that I am your social science educator on this Unacademy platform, which is specifically for you. So what you have to do, well, you have to hit the subscribe button, you have to like and share the video, and you have to comment down all your doubts about this chapter or any chapter that you think of, and I will make sure that I'll make a video about all your doubts and clear all your doubts through this video, through any other video. And if you want to ask me anything, you can go and comment down in the comment section below and let me know. Right, so moving on, just before you comment down and let me know what your doubts are, all you have to do is hit the subscribe button, like and share, and hit the bell icon to never miss any video from Unacademy. So, as this topic is already, we have discussed this topic, and what? Well, we have only completed the half part of the topic, so the rest part is we are moving it right now. We're going to read about the rest part right now, and we'll know what water is. So just a recap of the previous sessions, we have already read how water comes to us, what the water cycle is, how water sits on the cycle and runs off in the atmosphere, in the hydrosphere, and in the lithosphere. Then we have already studied how does it change its form during the water cycle. We have studied what evaporation was, we have studied what precipitation was, and we have studied what condensation was, and what were the ways how the water falls on the earth in different ways, and this is known as the forms of precipitation, named as rain, sleet, snow, and hills. Yes, and then we have also studied कि भाई distribution कैसा है पानी का. Why should we conserve water? Not saying I'm saying why should we conserve water. So because the fresh water is in the limited amount, and the rest of the water, which is basically 97% of the whole amount of the water, whole quantity of the water that is on this earth, we can only use the other 3%, that is the fresh water. And because this ocean water is saline, it's salty, we cannot use this ocean water. It is not perfect for human consumption. Now, when we are talking about the fresh water, this 3% of the fresh water is again divided in different percentage, from which we can only use the groundwater and the other surface water or the other sources of water. However, the other part, that is the 68.7%, is filled up with the glaciers and the ice caps, यानी कि जो बर्फ में जितनी भी पानी जाता है, that is the fresh water. यानी कि पानी कहाँ है? पानी है अंटार्कटिका में, बहुत सारा fresh water, but we cannot live there. And this is why this fresh water, which is 68.7% of the total जितना पानी था उसका 3% में से, उसका भी उस 3% में से सिर्फ 68.7% जितना पानी है हमारे पास, वो फ्रीज्ड है. कैसा है? वो यूज नहीं कर सकते. या तो भाई आप ग्लेशियर्स में रहो, ग्लेशियर्स से पानी लेकर आओ, एंड देन यू विल बॉईल इट, एंड देन इट विल टर्न इनटू लिक्विड, एंड देन drink it. But it's a very long process, and it is not really convenient to do all this. So the another thing that we can do is we can use the groundwater, that is basically 30.1% of the fresh water that we have on the earth. Now the other 0.9% is the other sources of water, maybe some sources like rain or lakes, ponds, and other stuff. ठीक है. अब उसके बाद 0.3% बचता है, that belongs to the surface water, which has the lakes and the ponds. ठीक है. अब ये जो लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर्स हैं, इसका ये जो 0.3% है, इसका 87% लेक्स में होता है. उसके बाद इसी 0.3% का 11% स्वॉर्म्स में होता है, एंड द अदर 2% इज फिल्ड विद द रिवर्स. यानी कि रिवर का पानी, अगर रिवर का पानी फ्रेश वाटर है, तो it comes from that 2% of fresh water which is in the 0.3% of the surface water. Right, so this is the fresh water that we can basically use, the groundwater and the surface water and the other portions of the water. That is the 30.1% of 3%, 0.3% of the 3%, and 0.9% of the 3%. Moving on, as we have already discussed this topic, it was just a quick review of what we have already discussed. We are moving towards the ocean circulation, and this is the next topic of the chapter.
सो द ओशन सर्कुलेशन में होता क्या, ओशन सर्कुलेशन इज वेरी इजी। ओशन सर्कुलेशन जैसे आपको पता होगा, आप एक यूटेंसिल में पानी रख दो, ठीक है, अब आप उसे हिला दो, धक्का दे दो थोड़ा सा, तो क्या होगा, जो पानी है वो ऐसे 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 करके कुछ बाहर उछलेगा, कुछ अंदर ही ऐसे घूमता रहेगा, राइट। सो दैट इज सर्कुलेशन, यानी घूमना। अब ओशन सर्कुलेशन में क्या होता है, जब हम पानी की बात करते हैं, just keep aside this ocean circulation, we are just talking about the circulation of water। तो जो पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो वाटर होता है वो काम होता है, बिल्कुल आराम से ऐसे रहता है, उसे किसी चीज की हड़बड़ी नहीं होती, किसी भी चीज में जाना नहीं होता, ना पार्टी ना शादी। तो वो क्या करता है, वो कोरोना के सारे मेजर्स फॉलो करता है, यानी कि जितने प्रिवेंटिव मेजर्स हैं सब कुछ फॉलो करता है। क्या करता है, वो चुपचाप अपने घर में बैठा रहता है। एंड दिस इज व्हाई पॉन्ड्स एंड लेक्स हैव काम वाटर, यानी पॉन्ड्स एंड लेक्स पे कैसा पानी होता है, काम होता है, जो बिल्कुल सीधा होता है। बहुत ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, यू कैन सी द पॉन्ड्स एंड लेक्स जिसमें पानी कभी कभी, बहुत कभी कभी ऐसे ऐसे मतलब मजे से नाच रहा हो या घूम रहा हो, इन द सेंस कि ऐसे ऐसे वेव्स हो रहे हो उसमें। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत ही जब बहुत तेज हवा होती है या कहीं पास में अर्थक्वेक आ रहा होता है तो ऐसा होता है। other than in the common situations, तो जो पानी होता है ponds का और lakes का वो काम होता है। and when we are talking about the ocean and the seas, तो आपने ये चीज देखी होगी कि ओशन में जब भी आप खड़े हो, भले ही वहां पे कोई अर्थक्वेक कुछ नहीं हो रहा, बट इट कम्स टू यू इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, राइट। सो दैट मीन्स कि भाई जो ओशन का पानी है दैट मूव्स कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली इट इज मोबाइल, इट मूव्स कंटिन्यूसली। कौन सा पानी, ओशन का पानी। और ये जो पानी मूव कर रहा है इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो मूव किस किस फॉर्म में करता है। अब इसी ओशन की सर्कुलेशन की, यानी ओशन वाटर के सर्कुलेशन की तीन मूवमेंट्स होती हैं। कितनी होती है, तीन। द फर्स्ट वन इज वेव्स, द सेकंड इज टाइड्स एंड थर्ड वन इज करंट। तो अभी जो वेव, टाइड्स और करेंट्स हैं, ये कैसे ओशन में हमें पानी दे, सॉरी ओशन का पानी कैसे सर्कुलेट करती हैं। लेट्स गेट इनटू डीप इन दिस टॉपिक एंड स्टार्ट फ्रॉम दी वेव्स। तो भाई वेव्स क्या होती हैं, वेव्स होती हैं जब ओशन का पानी सरफेस तक आता है और वापस चला जाता है। जब भी आप बीच पर जाओगे आपको हमेशा ये चीज दिखेगी, हमेशा, कभी ऐसा नहीं होगा कि वेव्स आपको नहीं दिखेगी। तो ये वेव्स क्या करती हैं, वेव्स आती हैं आपके पास, अंदर लौट जाती हैं, फिर आती हैं, फिर लौट जाती हैं। तो यही जो हल्की फुल्की सी वेव्स होती हैं वही हम उन्हें कहते हैं वेव्स, ठीक है। सो ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। अब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, जब बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, तो जो हवा की वजह से जो पानी होता है ना, वो पानी फ्लो करता है, और जब वो पानी फ्लो करता है तो वो वेव्स की फॉर्म ले लेता है। और जैसे वो हवा की वजह से पानी वेव की फॉर्म लेगा, तो क्या होगा, वो वेव्स बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो स्टॉर्म आ रहा है, जो विंड्स है, उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब सपोज आपको ये चीज देखनी है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक यूटेंसिल में पानी लो एंड देन स्टार्ट इफ यू हैव अ हैंड फैन, और आपके पास कोई ऐसा फैन है जिसकी डायरेक्शन डायरेक्टली पानी की तरफ हो, और यू कैन स्टैंड जस्ट बिलो द, जस्ट अंडर द फैन, एंड यू कैन सी कि जो आपका यूटेंसिल है उसका जो पानी है वो हवा की वजह से हिल रहा है। अब ये तो पंखे की हवा, ये तो फैन की हवा है, बट यू विल नोटिस कि फैन की हवा इतनी तेज नहीं है। However, when I'm talking about the storm, you know how the wind acts during a storm, right? इतनी तेज हवाएं चलती हैं और वो उन तेज हवाओं में जो ओशन का पानी होता है वो बड़ी बड़ी वेव्स की फॉर्म में आता है शोर्स पर, और जब वो शोर पर बड़ी बड़ी वेव्स की फॉर्म में आता है तो हम उसे कहते हैं ह्यूज वेव्स। अब कभी कभी ये जो वेव्स होती है ये सुनामी का सुनामी फॉर्म कर देती है। नाउ व्हाट इज दिस सुनामी, तो कभी कभी क्या होता है, जो अर्थक्वेक होता है, जैसे हमने पढ़ा था ऑलरेडी अर्थक्वेक के बारे में, आई नो दैट यू नो अबाउट द अर्थक्वेक्स इन वोल्केनोज, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 7th grade, and if you are just a little bit confused about all this stuff, you can go and check for the 7th grade videos, and I've already posted a video there about the volcanoes and the earthquake, तो आप उसमें जाके देख सकते हो, यू नो व्हाट earthquake and volcanoes are। तो अब जब earthquake के टाइम पे क्या होता है, या volcanic eruption के टाइम पे क्या होता है, जो स्लाइड्स होते हैं, जो लैंड स्लाइड्स होते हैं, जो टेरिटोरियल प्लेट्स होती हैं, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, वो प्लेट्स हिल जाती हैं, और वो कभी कभी इतना हिलती हैं कि जो हमारा पानी है वो भी हिल जाता है। अब आप सोचो, आपने किसी बर्तन में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, आपने किसी बर्तन में पानी लिया है, अब आपने वो बर्तन हिला दिया तो क्या होगा,
पानी भी हिलेगा। सिमिलरली अब आप उस बर्तन की जगह ये सोचो कि एक नीचे प्लेट है और उस पर इतना सारा पानी है, तो वो जो प्लेट उस अगर मैंने नीचे प्लेट हिला दी तो क्या होगा, वो पानी भी नीचे गिरेगा, ये पानी हिल जाएगा। अब वो जो पानी है वही पानी एक प्लेट पर है, और वो प्लेट क्या है, वो है लिथोस्फेरिक प्लेट। ठीक है, अब जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स हिल रही हैं एंड इट फॉर्म्स अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन, तो क्या होगा, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स हिलेंगी और ये इरप्शंस और अर्थक्वेक होंगे, तो जहां पर पानी होगा वहां पे क्या होगा, जब प्लेट की वजह से पानी बाहर आ गया प्लेट से, तो ऐसा ही होता है जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स हिलती हैं, तो वो जो पानी होता है वो इतनी तेज पानी फॉर्म करता है, वेव्स को इतनी ज्यादा स्पीड में फॉर्म करता है, एंड दैट इज कॉल्ड सुनामी। ठीक है, एंड अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ सी वाटर। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, थोड़े टाइम पहले इन 2005 आई गेस एक सुनामी आई। ठीक है, एंड उसने जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, अंडमान एंड निकोबार और जितने कोस्टल एरियाज हैं, सबको रुइन कर दिया। व्हाट इट वाज, इतनी खराब सुनामी थी, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव सुनामी थी कि भाई वो जो सुनामी जब आई थी तो उसमें क्या हुआ था कि जो एरिया था इंडियन ओशन का जो एरिया था, उसमें जो लैंडस्लाइड्स हुए थे वो 10 to 20 मीटर डीप हुए थे, यानी कि जो प्लेट यहाँ है वो खिसक के 10 से 20 मीटर चली गई। अब जब वो 10 से 20 मीटर चली गई तो क्या हुआ, जितना पानी है, अब आप ये सोचो, आपने एक तरफ पानी है तो एक प्लेट में पानी है, एंड नाउ यू स्टार्ट टिल्टिंग द प्लेट, तो पानी क्या होगा, इसी तरफ फ्लो होगा। जब वो जो लिथोस्फेरिक प्लेट थी, जो कोस्टल एरिया पे प्लेट थी, जब वो हिली, और वो एकदम से हिली, कितना नीचे, 10 to 20 meters deep. 1 meter is about this length, something from your hand, and then a half of your chest, इतना होता है 1 मीटर। ठीक है, then you are guessing it like 10 to 20 meter deep, अगर वो लिथोस्फेरिक प्लेट चली गई है, लैंडस्लाइड हो गई है इतनी ज़्यादा डीप, तो क्या होगा, पानी जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, राइट, यानी कि जिस तरफ लैंडस्लाइड हुआ है उस तरफ पानी चला जाएगा, और जितना पानी बाहर है ऊपर की तरफ है उस पे भी वेव्स आएंगे, और वो वेव्स इतनी तेज आते हैं कि वो पूरा एरिया जो कितने कोस्टल एरियाज थे 2005 में, अंडमान एंड निकोबार, उन सारे एरियाज को वो वेव्स अपने अंडर कर लेते हैं, यानी कि सुनामी लाते हैं। ठीक है, अब वो तो डिस्ट्रक्टिव है ही है। सो दिस सुनामी कैन बी एज हाई एज 15 meters. Can you imagine? Just put your hand on the half of your chest and straight up your hands like in the sides, and then you can realize कि 1 मीटर होता कितना है। आपकी जो स्कूल की टेबल होती है, अगर यू आर सिंगल स्टूडेंट सिटिंग ऑन वन टेबल, तो क्या होगा, वो टेबल 1 मीटर की होती है। और यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ 1 मीटर ऑफ द इंच टेप। आप देख सकते हो आपका डोर 1 मीटर का होता है। अब ये सारे 1 मीटर्स की तरफ 15 मीटर की जो हाइट है, इतनी हाई सुनामी हो सकती है। और आज तक जितनी हाईएस्ट सुनामीज आई हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट सुनामी थी 150 मीटर्स की। कैन यू इमेजिन दैट, 150 मीटर्स की सुनामी इतनी तेज आई होगी, इतनी ऊपर होगी, यू कैन नॉट इवन सी कि उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, और जितनी हाई उतनी ज्यादा स्पीड, तो उस टाइम पे उसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी 700 किलोमीटर पर आवर। दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन द ट्रेन्स। ठीक है, जिस ट्रेन में आप बैठ के जाते हो इतनी जल्दी आपको लगती है, उससे भी ज्यादा स्पीड की ये सुनामीज आई। ठीक है, सो नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन उन्होंने वेव्स ने किया होगा, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सुनामीज। Moving on to the second ocean currents, and they were tides. Tides क्या होती है, तो भाई दिन में 2 बार tides। ठीक है, not that साबुन वाला tide. Tide is the rise and fall of ocean river. आपने देखा होगा क्या होता है, जो tides होते हैं, कभी आपने देखा होगा कि लोग ऐसे सर्फ कर रहे हैं बोर्ड पे, पतला सा बोर्ड होता है, they stand on it and they start surfing in the ocean। तो वो किस पे सर्फ करते हैं, वो waves पे सर्फ करते हैं, नहीं, वो tides पे सर्फ करते हैं। ठीक है, और ये टाइड्स कब आती हैं, ये दिन में 2 बार आती हैं, एक दिन में 2 बार these tides come. This is the fall and the rise of the ocean water. ये होता क्या है, ये इसीलिए होता है कि भाई आप जो भी चीज अपने हाथ में पकड़े हुए हो, आपने नीचे गिराई, तो अर्थ का कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने उस चीज को अपनी तरफ खींच लिया।
अब क्या होता है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स सन और मून में भी होता है, राइट। तभी तो अर्थ एक जगह पर है, तभी तो मून एक जगह पर है, घूम रहा है। तो इसी की वजह से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन का, मून का, अर्थ का, तो ये जो उनकी सरफेस है उसको भी अपनी तरफ खींचता है। नाउ अब सरफेस तो सरफेस है, चलो ठीक है, पर पानी का क्या? जब पानी का सरफेस धीरे धीरे, जो पानी का सरफेस नहीं, जो अर्थ की सरफेस पर पानी है, उस पानी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और मैं उस पानी को खींच रही हूँ, तो क्या होगा, पानी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करे। जैसे आपका फ्रेंड आपको खींचेगा तो क्या होगा, या तो आप उसकी तरफ जाओगे या आप अपने आप को छोड़ने की कोशिश करोगे। तो जब वो आपको छोड़ देगा तो क्या होगा, आप बहुत तेज आगे गिरोगे, राइट। यही होगा, जब भी आप, जैसे ही वो आपको एकदम से छोड़ देगा तो आप बहुत तेज आगे गिरोगे, क्योंकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो और वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। सिमिलरली वाटर के साथ क्या होता है, जब उनकी ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है तो यही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पानी पीछे की तरफ होता है। नाउ जैसे वो ग्रेविटेशनल पुल हल्का हुआ तो वो पानी आगे की तरफ आता है और वो टाइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब दिस टाइड्स आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल दैट इज एक्सर्टेड बाय द सन, द मून एंड द अर्थ, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा हाई भी हो सकते हैं, ये लो भी हो सकते हैं। द हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स द शोर राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल, जो वाटर पानी का जो शोर होता है, जो समुद्र का किनारा होता है, उसको कवर कर लेता है और बहुत ऊंचाई पर आता है। बहुत ऊंचाई मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई भी नहीं, नॉट लाइक सुनामीज, बट इट कम्स ऑन सम सर्टेन हाइट्स। तो वो जब हाइट पर आता है तो हम उसे हाई टाइड कहते हैं। एंड लो टाइड मतलब जब पानी लोएस्ट लेवल पर होता है, आराम से होता है और वो पीछे जाता है, शोर से पीछे जाता है, तो हम उसे लो टाइड कहते हैं, ठीक है। So this is because of the gravitational pull. Now we will see what spring tides and neap tides are. तो भाई आपको पता है, क्या पता है कि जो अर्थ है उसके चारों तरफ उसकी चारों तरफ मून घूमता रहता है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि सन, अर्थ और मून एक ही लाइन पर आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये सेम लाइन पर आ जाते हैं तो हमें मून पूरा दिखता है, ठीक है। या तो हमें पूरा नहीं दिखेगा, या तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, या तो हमें पूरा दिखेगा। अब सपोज अगर मैं बोलती हूँ कि ये जो आपका मून है, सॉरी, दिस मून कम्स एट दिस प्लेस, तो क्या होगा, अब अर्थ की वजह से वो जो मून है वो छुप गया, ठीक है। अब मून के पास तो कोई रोशनी जा नहीं रही है। अब जब मून के पास में कोई रोशनी नहीं जा रही है तो वो हमें दिखेगा कैसे? एग्जैक्टली वो हमें नहीं दिखेगा। किस कंडीशन में? जब अर्थ बीच में है, सन आगे है और मून पीछे, ठीक है। नाउ यू कैन सी है क्या होगा, जब मून हमारा यहाँ पर आएगा इस प्लेस पर, तो इमेजिन करो अर्थ बड़ी सी एक बॉडी बीच में है, पीछे से टॉर्च आ रही है एंड आप उस बड़ी सी बॉडी के आगे खड़े, तो क्या आपको रोशनी आएगी? आप तक रोशनी आएगी? नहीं, आप तक नहीं रोशनी आएगी। और जो आपसे बड़ी ऑब्जेक्ट है जिसके पीछे आप खड़े हुए हो, उसकी शैडो से आप कवर हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा ही केस होता है जब अर्थ, सन और मून एक लाइन पर आते हैं। आइदर जब जो मून है वो इसी साइड पर हो, जैसे मैंने आपको बताया था इधर ही, तो क्या होगा, वो जो अर्थ की शैडो है उससे वो कवर हो जाएगा और जो सन की रोशनी है वो वहां तक नहीं आ पाएगी। बट तो उस टाइम पे क्या होगा, जब भी सन की रोशनी उस पर नहीं आ पाती, बिल्कुल नहीं आ पाती, तो द डे इज न्यू मून डे एंड द न्यू मून सेज कि भाई अब हम मून नहीं देखेंगे। एक दिन ऐसा आता है ड्यूरिंग द फोर्थ नाइट्स कि एक दिन हमें मून नहीं दिखता एंड दिस इज वन ऑफ द डेज। नाउ कम्स कि भाई अगर मून हमारा यहाँ पर आ गया तो क्या होगा? तो भाई मून यहाँ पर आ गया तो ये होगा कि अर्थ से हमें मून पूरा दिखेगा एंड इट इज द फुल मून डे। इस टाइम पर स्प्रिंग टाइड्स आती है, ठीक है। क्या आती हैं? स्प्रिंग टाइड्स। अब क्या होता है, ये स्प्रिंग टाइड्स, इसलिए इनको स्प्रिंग टाइड्स तो कहते हैं। और सबसे बड़ी बात की जो टाइड्स होती है वो बहुत हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक ही लाइन पे सब कुछ खींच रहे हो। जैसे आप खड़े हो और आपको 3-4 फ्रेंड्स एक ही साइड में खींच रहे हैं, एक ही साइड में खींच रहे हैं, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप एक ही साइड में खींचते हुए चले जाओगे। और सिमिलरली ऐसे जब अर्थ, मून और सन एक ही तरफ प्रेशर लगा रहे हैं तो जो पानी है वो क्या होगा, खिंचता हुआ चला जाता है। एग्जैक्टली, तो इसीलिए वो हाई टाइड्स फॉर्म करता है। जैसे वो छूटता है वैसे वो बहुत तेज भागे आगे आता है। जितना ज्यादा प्रेशर आप पीछे ले रहे हो उतना ज्यादा प्रेशर आगे से भी भागे, ठीक है।
तो जब अर्थ का पानी बहुत तेज आगे आता है तो हम उसे हाई टाइड्स कहते हैं। ये कब होता है? जब मून, अर्थ और सन एक लाइन में होते हैं और हम इन्हें बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। नाउ द नीप टाइड्स। नीप टाइड्स क्या होती है? नीप टाइड्स आती है जब फर्स्ट एंड क्वार्टर टाइम होता है मून का, जब हमें आधा दिखता है या फिर आधे से कम दिखता है मून। और ये कब होता है? ये तब होता है जब एक डायगोनल प्रॉपर्टी में ये लोग खड़े होते हैं। कौन लोग? सन एंड दी मून। जैसे कि अब आप देख रहे हो इस पिक्चर में, सन यहाँ पर है, मून यहाँ, वो सॉरी, सन यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, एंड दिस इज दी अर्थ। तो क्या करेगा यहाँ पे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे आप बीच में खड़े हो, एक तरफ से आपका एक फ्रेंड घसीट रहा है, एक तरफ से एक फ्रेंड घसीट रहा है, तो आपको कुछ इफेक्ट होगा? नहीं, दोनों की पावर भी इक्वल है, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप एक ही जगह पे खड़े रहोगे। सिमिलरली जब जो अर्थ पे पानी है, सन ऐसे घसीट रहा है, ठीक है, और जो मून है वो ऐसे घसीट रहा है पानी को अपनी तरफ, इस साइड पे घसीट रहा है, एंड द सन इज सकिंग अप फ्रॉम द अपर हेड। अब जो सन ऊपर से है और मून इधर से, इक्वल फोर्स में, ठीक है। तो क्या होगा? जब वो इक्वल फोर्स काम करेगी तो उससे जो वाटर है सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, उसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई नीप टाइड्स हैज द लो टाइड्स, यानी कि जो मून होता है, सन होता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और डायगनली ऑपोजिट होते हैं। क्या? अर्थ, सॉरी, सन और मून। एंड this is the time when the tides come low on the earth's surface and is known as the neap tides. Moving on, high tides क्या होती है? अब मैंने आपको बताया था, देख लो, you can see in the picture कि भाई अर्थ है, डायगनली ऑपोजिट मून है, मून के डायगनली ऑपोजिट सन है। On the other hand, स्प्रिंग टाइड में क्या है? स्प्रिंग टाइड में तीनों लाइन में है, यानी कि सन, मून, अर्थ, या फिर सन, अर्थ, मून, ठीक है। सो हाई टाइड्स क्या होती हैं? When the ships to, अब हाई टाइड्स यूज किस में होती हैं, यानी कि क्या हम हाई टाइड्स का यूज कर सकते हैं? तो वेरी वेल, यस, we can use the high tides. Indeed, we can use the high tides. How? क्योंकि अगर बहुत तेज पानी बहेगा तो क्या होगा? अगर जो आपने अपनी छोटी सी शिप बनाई है, छोटी सी बोट बनाई है कागज की, वो भी बहेगी, ठीक है। ऐसे ही होता है, जितनी तेज बहाव होता है पानी का, उतनी तेज आपकी जो बोट है वो भी बहने लगती है। बट द थिंग इज कि अगर मैं बड़े बड़े शिप्स की बात करूं तो वो हल्की हल्की टाइड्स में तो नहीं चल सकते, ठीक है। तो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा टाइड्स आती है, तो मैंने आपको बताया था टाइड्स क्या करती है? शोर की तरफ आने की कोशिश करती है, ठीक है। किसकी तरफ? जो सरफेस होता है अर्थ, उसकी तरफ आने की कोशिश करती है। अब जब वो उसकी तरफ आ ही रही हैं तो क्या होगा? अपने साथ में जो उनके साथ में शिप है इतने बड़े बड़े, उनको भी वो अपने साथ में ले आती है। उनकी स्पीड इतनी तेज होती है, दे आर कमिंग टुवर्ड्स द शोर, सो दैट इज व्हाई दे ब्रिंग द शिप्स एंड दे ease the arrival of the ships to the harbor or to the shore. Now it also helps in fishing. क्यों? क्योंकि भाई टाइड्स तो भाई बीच ओशन से आ रही है। अब बीच ओशन में बहुत सारी फिशेस भी हैं। जब वो ओशन से जो पानी है वो शोर पर आएगा तो क्या होगा? जितनी भी फिशेस हैं वो भी शोर पर आ जाएंगे। और इस टाइम पे क्या होता है? इस टाइम पर बहुत सारी फिशेस हमें शोर पर मिल सकती है और फिशरमैन आपको जरूर दिखेंगे ड्यूरिंग द high tides on the shore. Now, the rise and the fall of the water due to tides is being used to generate electricity. और क्या होता है? और भाई हम इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत इजीली। जैसे भाई इतनी तेज ऊपर नीचे पानी हो रहा है तो हम उस पानी को ऐसे यूज कर सकते हैं कि वो पानी जो है हमारा, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो भी हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आई थिंक द टाइड्स इज क्लियर। नाउ वी मूविंग टू द ओशन करंट्स। अब क्या होता है, कुछ जो ओशंस होते हैं बड़े बड़े, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन, ये सारे जो ओशंस हैं, ये सारे ओशंस क्या करते हैं? इनकी जो पानी है ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, आप जब स्कूल जाओगे तो आप डेफिनेट डायरेक्शन में जाते हो। सिमिलरली ओशन करेंट्स क्या करते हैं? ओशन करेंट्स भी एक डेफिनेट डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। नाउ ये जो ओशन करेंट्स होते हैं ये या तो गर्म हो सकते हैं या ये ठंडे हो सकते हैं। Like seriously, literally, they can be cold and they can be warm. I'm not just giving them the name. They can be warm and they can be cold as well.
अब क्यों होता है? These warm ocean currents are the warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. अब आप एक चीज याद करो, जब हमने अर्थ का जब हमने ग्लोब पढ़ा था, वी हैव स्टडीड द ग्लोब इन द 6th स्टैंडर्ड, तो हमें ये पता था कि भाई ये जो हमारे एरियाज होते हैं, जो इक्वेटोरियल एरियाज होते हैं, ये गर्म होते हैं, ठीक है। अब ये जितने गर्म होते हैं उतना ही उनके साइड का पानी गर्म होगा, ठीक है, क्योंकि पानी भी तो जल्दी जल्दी हीट हो जाता है। तो जब पानी गर्म होगा और पानी पोल्स की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? जब गर्म पानी पोल्स की तरफ मूव करेगा तो अपने साथ में गर्म हवा भी लेकर आएगा। एंड दिस इज व्हाई these ocean currents are known as warm ocean currents. एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है इसका गल्फ स्ट्रीम। Now we are moving towards the cold ocean currents. So cold ocean currents carry water from polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes. यानी कि जब भी higher latitude से lower latitude यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ पानी आएगा तो हमेशा ठंडे से आएगा, and that is why it is known as cold ocean currents. अब जब polar areas हमेशा ठंडे होते हैं, we know the Antarctic region, we know the Antarctic Circle and the Arctic Circle are वेरी कोल्ड, या द पोलर रीजन। अब जब वहां से उस पोलर रीजन से पानी आ रहा है तो क्या होगा? वो जो पोलर रीजन है वो जब पानी नीचे भेजेगा, करंट को नीचे भेजेगा, उस वेव्स को नीचे भेजेगा, तो वो सारी वेव्स जो होंगी वो ठंडी, ठीक है, क्योंकि भाई ठंडा पानी है, ठंडा पानी उड़ेगा, अब ठंडा पानी चलेगा तो क्या होगा? पानी तो है ही ठंडा, साथ में हवा भी ठंडी चलेगी, एंड दैट इज व्हाई दीस करंट्स आर नोन एज कोल्ड ओशन करंट्स। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है लेब्राडोर ओशन, नॉट द डॉग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डॉग, वेल वी हैव दिस इज द नेम ऑफ द ओशन एंड द ओशन नेम इज लेब्राडोर ओशन। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर सिचुएशंस ऑफ द एरिया। क्या बोला उसने? उसने ये बोला कि जैसा ओशन करंट वैसे ही वहां के एरिया का टेम्परेचर, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर वार्म ओशन करंट है तो पानी की वजह से क्या होगा? वो गरम गरम हवा भी लेकर आएगा अपने साथ, और वो गरम हवा क्या होगी? वो गरम हवा उस एरिया में और गर्मी फैला देगी। तो अब वो जो गरम हवा उस एरिया में आई है उसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर चेंज हुआ। अब जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या हुआ? उस एरिया का टेम्परेचर भी चेंज हो गया। And this is why these ocean currents influence the temperature of that area. We have read कि ocean currents क्या होते हैं? We know कि warm ocean current होते हैं, cold ocean current होते हैं। We know the example of warm ocean current, that is the Gulf Stream, and the cold ocean current is the Labrador Ocean. ना वी नो कि ओशन करेंट्स की वजह से जो भी टेम्परेचर होता है ओशन करेंट्स का, उसी की वजह से हमारा जो एरिया का टेम्परेचर होता है दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओशन currents. Now moving on, we can see the map that is there. We can see the red lines are the warm ocean currents and the blue lines, as it says ही cold ocean current. तो अब आप देख रहे हो कि जितने भी lines, we can see all these lines, ये कहाँ? इक्वेटर से ऊपर की तरफ से, ठीक है। और जो चीज इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाती है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाती है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाती है, ये सारी क्या है? ये सारी वार्म करंट्स। Now when we're talking about the cold currents, तो आप देखो भाई, ये देखो आप ऊपर से ये जो आर्टिक एरिया है, आर्टिक एरिया से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ जा रही है, हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ जा रही है। सारी winds, you can see all the blue lines that are going from higher altitude to the lower altitude are the cold ocean currents, while the red ones are the warm ocean currents. So the areas where the warm and the cold currents meet provide the best fishing grounds for the world. अब क्या है? इसने ये बोला कि जहाँ पर ऐसे एरियाज जहाँ पर ठंडी और गर्म ओशन करंट्स मिलते हैं वो बेस्ट फिशिंग एरियाज होते हैं। क्यों? कि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नॉमिनल है, ना ही ज्यादा ठंडा है ना ही ज्यादा गर्म है। अब जब वो ना ही ज्यादा ठंडा है ना ही ज्यादा गर्म है, सो इट इज गुड फॉर दी फिशेज एज वेल। फिशेज को भी अच्छा लगेगा, तो फिशेज उसी एरियाज में होती हैं, एंड दैट इज व्हाई वहाँ पे फिशिंग बेस्ट हो सकती है। कहाँ पे? ऐसे एरियाज में जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं। Now the Japan and the eastern coast of North America. Now you can see कि भाई eastern coast कहाँ है? Eastern coast is this one. This area is all the eastern coast of the North America. And you can see the North Pacific current and the Californian current के यहाँ पे मिलते हैं। Alaska current भी मिल रहा है।
कोल्ड भी है एंड वार्म भी है, एंड इसी की वजह से ये जो एरियाज है यहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स है. एंड द जापान एज वेल, वी कैन सी द एरिया ऑफ द जापान, वी हैव द two current lines, one is the warm and one is the cold current line. और जब मिलती हैं तो पानी कैसे हो जाता है, पानी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, and that is fit for the fishes and the fishermen as well. So it also says कि भाई foggy weather making it difficult for navigation. अब आपने ये चीज देखी होगी कि जब दो फिशेस जब दो करेंट्स मिलते हैं, जो ठंडे या गर्म चीज जब मिलती है, सपोज आप ठंड का टाइम है, आप गरम गरम बकेट में पानी लेके आए हो, बकेट में गरम गरम पानी लेके आए हो, उसमें आपने ठंडा पानी निकाला, ठीक है, जैसे आपने ठंडा पानी डाला तो उसमें से ऐसे गैस निकलेगी, धुआं निकलेगा, फॉग निकलेगी, राइट. ठंड में क्या होती है, फॉग निकलती है. व्हेन यू डू लाइक दिस एंड यू कैन सी द फॉग कमिंग आउट ऑफ योर माउथ. व्हाई? क्योंकि बाहर ठंडा एंड यू आर गिविंग द एटमॉस्फेयर द हीट इट वॉन्ट्स. तो जैसे ही हीट और ठंडी चीजें मिलती हैं तो धुआं निकलता है. अगर गैस पर कोई बर्तन है बहुत देर से एंड इट इज वेल हीटेड, आप उसमें पानी डालोगे तो धुआं निकलेगा. तो ऐसे एरियाज में जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं, मीट करते हैं, वहाँ के एरियाज में बहुत फॉगीनेस हो जाती है, यहाँ की धुआं धुआं हो जाता है, ठीक है. और ये धुआं धुआं क्या करता है, ये धुआं धुआं इट मेक्स दी नेविगेशन डिफिकल्ट. यानी कि अगर हम वहां से किसी भी रूट पे जा रहे हैं, वी आर यूजिंग अ शिप, वी यूजिंग अ बोट और एनीथिंग, इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट. वाई? क्योंकि भाई आगे पीछे सब धुआं है, तो आगे पीछे सिर्फ फॉग है, तो हाउ कैन वी सी, हाउ कैन वी नो इफ वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट. सिमिलरली जब ठंड होती है और स्कूल बंद हो जाते हैं, तो क्यों बंद हो जाते हैं, इसीलिए ही बंद हो जाते हैं कि भाई स्कूल बसेस आएंगी एंड फॉग की वजह से दे कैन नॉट सी द ओवरव्यू, दे कैन नॉट सी कि आगे रोड पे क्या हो रहा है, एंड इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट. दैट इज व्हाई द स्कूल्स आर क्लोज्ड ड्यूरिंग द फॉगी डेज, ठीक है. एंड इसीलिए फॉगी एरियाज में नेविगेशन भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो oh, that's it for today's topic, and we have also completed our chapter. And if you have any doubts, you can let me know in the comment section below. I'll surely check it out and clear all your doubts soon in a very exciting video that will be coming very soon. Until the next video we meet, all you have to do is like, share the video, hit the subscribe button, hit the bell icon to never miss any video from Unacademy. And you have to, if you want to download the PDF, you want to download the notes, you have to go to the description box below and you can download the PDF from there. So till the next video we meet, stay safe and stay home.